मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल. In this session, we're doing questions on 3D mensuration that have been asked in JIPMAT examination. Start करते हैं सेशन. And if you have not already subscribed, so make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon. You can also message me on Telegram at ADITYKT and also join WhatsApp channel. So first question. From the four corners of a rectangular sheet of dimensions 25 cm cross 20 cm, a square of side 2 cm is cut off from four corners and a box is made. तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होगा? ठीक है, सो एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास 25 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर की, एंड फ्रॉम ईच कॉर्नर a 2x2 square has been cut off to make a box. So what will be volume of that box? Dimensions of each square are 2x2. ठीक है, सो इफेक्टिवली बेस हमारा क्या होगा जब फाइनली हम बॉक्स बनाएंगे? तो दिस शुड बी द बेस, द इनसाइड रेक्टेंगल. ओके, इनसाइड रेक्टेंगल विल बी द बेस, और हाइट हमारा हो जाएगा इक्वल टू 2 यूनिट्स. तो पैक करेंगे इसको. So what will be inside dimension? If this dimension is 25 and this is 20, inside dimension this length will be equal to 25 minus 4, so this will be 21, and this length here, this will be 20 minus 4, which is equal to 16. So 21 cross 16 will be the base, with 2 as the height. So volume will be equal to 21 into 16 into 2, 21 into 32, 32 into 20, 640 plus 32, 672 centimeter cube will be our volume. Option B will be the answer. क्या है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Given below are two statements, we have to identify which of the statements are correct. First statement, volume of a right circular cylinder of base radius 7 cm and height 10 cm is 1540 centimeter cube. So volume of a cylinder is equal to base area into height, pi r square h, and pi is 22 by 7. Radius is equal to 7, so into 7 into h, which is equal to 10. So that will be 22 into 7 into 10, that is 1540 centimeter cube. Yes, first statement is absolutely correct. Second one, total surface area of the cylinder having radius of base 14 cm, height 30 is 3872 centimeter square. So total surface area of a cylinder, that is equal to 2 pi r into h plus r, or circular curved surface area plus 2 times base area, 2 pi r into h plus r. So 2 into 22 by 7 into r, which is equal to 14, and into h plus r, 30 plus 14. So 22 into 2 into 88 into 44. ठीक है, 88 into 44, और वी कैन से दिस इज 11 स्क्वायर बाई 11 कॉमन ले लो तो बच जाएगा हमारा 8 into 4 32. 11 स्क्वायर इज 121 into 32, तो 32 बदला 32, 3 कैरी हो गया, 32 2 64 प्लस 3 67, 6 कैरी हो गया, 32 प्लस 6 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन ए इज द आंसर, दैट बोथ 1 and 2 आर ट्रू इन दिस केस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. If each side of a cube is decreased by 19%, then what will be the decrease in the surface area? तो हर एक साइड को हम 19% से डिक्रीज कर रहे हैं, तो डिक्रीज इन द सरफेस एरिया क्या होगा? सो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6 times साइड स्क्वायर्ड. ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. ए पे चेंज आ रहा है, साइड पे चेंज आ रहा है 19% का. ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर पे चेंज क्या आएगा, हमें बस यही आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, सक्सेसिव चेंज अप्लाई कर देते हैं. 19% ऑन वन साइड और 19% अगेन, तो बेसिकली क्या होगा? टोटल सर्फेस एरिया विल बी इक्वल टू 6 times ऑफ 19% डिक्रीज आ रहा है. तो अगर पहले ए था तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.81 टाइम्स ए हो जाएगा. ठीक है, तो या तो 0.81 होल स्क्वायर कर दें, तो 6 times ऑफ 0.81 ए होल स्क्वायर, तो दिस विल बी 0.81 होल स्क्वायर इंटू 6 ए स्क्वायर. तो दिस इज प्रीवियस वैल्यू 0.81 होल स्क्वायर, सिंस 81 दिस इज इक्वल टू 3 to the power 4, तो 81 स्क्वायर इज 6561. अगर ये वैल्यू पता है तो ऐसे भी देख सकते हो कि 0.6561 टाइम्स हो गया.
ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो कितना डिक्रीज आया हमारा? डिक्रीज आया है 34.39% का। ठीक है, 1 माइनस 0.6561 कर दोगे। ठीक है, डिक्रीज आया 34.39% ऑप्शन बी। और या फिर सक्सेसिव चेंज अप्लाई कर दोगे इन 19% तो -19 by x plus y plus xy by 100 with signs, that is the successive change. तो -19 plus 19 into 19, माइनस प्लस हो जाएगा, that is equal to 361 by 100, so -38 plus 3.61 and that is equal to -34.39%. this would be the answer. क्लियर है? ठीक है, एक और बात कि जब भी डिक्रीज होगा तो डिक्रीज हमेशा जो अरिथमेटिक समेशन होगा हमारा 19 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 बार 38 आएगा, तो उससे वैल्यू हमारा -38 से हाइयर होगा अगर माइनस में बात करें, अदरवाइज 38 से लोअर वैल्यू आएगा, यानी कि हमारा जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 37-36 के आसपास आएगा। तो इट कैन नॉट बी 40। ठीक है, 38 से लोअर वैल्यू आएगा, इस तरह से समझ लो। 40 नहीं हो सकता, 38.4 नहीं हो सकता और 19 भी नहीं हो सकता, बिकॉज 19 तो क्या है, एक बार का डिक्रीज की वैल्यू आ रहा है। तो क्लियरली ऑप्शन बी के अलावा कोई और आंसर पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे के सारे आंसर्स हमारे डेफिनेटली आउट ऑफ द रीच है, आउट ऑफ द लिमिट है, तो पॉसिबल ही नहीं। दैट इज वाई ऑप्शन बी क्लियरली आंसर होगा। ठीक है, अगर 19 के बजाय कोई फॉर एग्जाम्पल मान लो 19.25 19.7 इस तरह का वैल्यू दिया होता है जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होता, तो वहाँ पे ये अप्रोच भी दिमाग में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रूम हैज़ फ्लोर साइज ऑफ 15x6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द स्क्वायर मीटर होना चाहिए, स्क्वायर सेंटीमीटर तो बहुत छोटा रूम हो जाएगा। ठीक है, बेबी रूम हो जाएगा। तो एनीवे कह रहे हैं यहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यूज गिवन है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूम विद द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द बेस एंड रूफ इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 वॉल्स। तो कंडीशन है हमारा सम ऑफ एरियाज ऑफ द बेस एंड द रूफ दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स। तो सम ऑफ एरियाज ऑफ बेस एंड रूफ क्या होगा, हमें फ्लोर साइज गिवन ही है, तो ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ द फ्लोर साइज विल बी सम ऑफ एरियाज ऑफ बेस एंड द रूफ and this should be equal to sum of areas of the 4 walls, और areas of the 4 walls will also depend on height, but area क्या होगा 4 walls का, perimeter multiplied by height। तो perimeter will be 2 times of 15 plus 6 into height, that is equal to h। 2 से 2 cancel out हो गया, 15 to 6 90 by 21, h will be equal to 90 upon 21 which will be 30 upon 7, 4 and 2 by 7 तो 4.2857 centimeter, this will be height, definitely a baby room, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 1/7 याद रखना है, 1/7 इज 14.28%, तो 1/7 इज इक्वल टू 0.1428। ओके, नेक्स्ट वन। A 30-meter deep wall with a diameter of 7 meters is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform of size 22 meters by 14 meters। तो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या होगा? पहले हमने डिग किया है वेल को, तो वहां से जितना वॉल्यूम ऑफ हमारा मड निकला है, अर्थ निकला है, उसको अल्टीमेटली वी हैव स्प्रेड ऑन अ प्लेटफॉर्म। तो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम सेम होगा दोनों केसेस में, तो वॉल्यूम दैट इज डग हैज बीन स्प्रेड आउट ऑन अ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम आएगा इंक्रीज की वजह से दैट शुड बी सेम एज द वॉल्यूम डग। तो वॉल्यूम डग क्या है, क्योंकि हमने सिलिंड्रिकल जो भी डग किया है, वेल को डग किया, तो वेल इज बेसिकली अ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ दैट अमाउंट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू डायमीटर 7 है हमारा, डायमीटर 7 है तो आर विल बी 7/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच विच इज इक्वल टू 30। तो दिस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रेज्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, इंक्रीज प्लेटफॉर्म, तो दैट विल 22 इंटू 14 इंटू एच। 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इस 7 से यहाँ पे 2 बचा और 2 से फिर यहाँ पे 15 बचा, तो h विल बी इक्वल टू 15/4 विच विल बी इक्वल टू 3.75 मीटर्स। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 3.75 मीटर्स इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 identical solid cubes of side 5 cm are joined end to end, then total surface area of the resulting cuboid क्या होगा? What will be total surface area of the resulting cuboid? ओके, 2 क्यूब्स हमने ज्वाइन किया है, so this is one cube and then the other cube is right behind it, and what will be total surface area? तो there will be total 6 faces, 6 faces होंगे, हाइट विल बी इक्वल टू 5 + 5 10 हो जाएगा, और बेस तो 5 × 5 ही रहेगा,
तो टू फेसेस बेस एंड टॉप का एरिया क्या होगा 5 स्क्वायर इंटू 2 प्लस बेसिकली लैटरल सरफेस एरिया दैट विल बी पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक, कमरे की तरह रूम की तरह ही समझ लो, पेरीमीटर इंटू हाइट, और पेरीमीटर है हमारा 5 + 5 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट दैट इज 10, तो दैट इज 25 इंटू 2 50 प्लस 50 इंटू एक सेकेंड 5 + 5 इंटू 2 इंटू 10, हाँ 200 है, ठीक है कैलकुलेशन में गड़बड़, मतलब मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी एज्यूम कर सकते थे कि अगर हम एक पर्टिकुलर सॉलिड क्यूब का हम टोटल सरफेस एरिया निकालते, दैट वुड हैव बीन 6a स्क्वायर। एक का होता 6a स्क्वायर, दो का मिला के होता 12a स्क्वायर। ठीक है, टोटल आता दो का 12a स्क्वायर, बट 12a स्क्वायर में से जब तुम दो को ऐड करोगे, एक के ऊपर एक ज्वाइन करेंगे, तो क्या होगा इफेक्टिवली, दिस साइड यहां पे जो हमारा दिस बेस सरफेस एरिया ऑफ दिस बेस विल गेट रिड्यूस्ड फॉर बोथ, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी 12a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो इफेक्टिवली आ जाएगा 10a स्क्वायर, दैट विल बी 10 इंटू 5 इंटू 5। तो ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, बट दिस इज मच बेटर कि अगर दो के बजाय चार होते, पांच होते, तो ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ कैनवस 1.51 मीटर wide required to build a conical tent of height 14 मीटर एंड फ्लोर एरिया 346.5 मीटर स्क्वायर। तो हमें कोनिकल टेंट का हाइट गिवन है 14 और फ्लोर एरिया इज 346.5, यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, दैट इज 346.5। तो व्हाट विल बी लेंथ ऑफ द कैनवस फॉर अ कोन? तो एज फार एज अ कोन इज कंसर्न, radius r, height h, lateral height is equal to L. So in that case, total surface area for a cone, that is pi RL, that is curved surface area. This is curved surface area plus pi r square because there is only one base. तो pi r into L plus r, that is total surface area. ठीक है, यहाँ पे बेस एरिया की वैल्यू क्या है, पूछ रहा है हमसे लेंथ ऑफ कैनवस, यानी कि बेसिकली कर्व सरफेस एरिया विल बी द अमाउंट ऑफ क्लोथ दैट विल बी रिक्वायर्ड, और उसमें भी लेंथ गिवन है, डिवाइड बाई लेंथ कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पाई आर एल निकालना पड़ेगा, बट पहले में गिवन है पाई आर स्क्वायर, तो वहाँ से सॉल्व करते हैं। और वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 दैट फॉर द सिलेंडर फॉर सेम रेडियस एंड हाइट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 346.5, यानी आर स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 346.5 डिवाइड बाई 22/7। ओके, 11 से सिंप्लीफाई करते हैं, तो 11 3 33, बच गया 16, तो 31.5 आ गया। ठीक है, 31.5 इंटू 7/2 इंटू 7/2, डेसिमल हटाया तो 10 इंटू 2। अब 315 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि हमें आर स्क्वायर समहाउ बनाना है, तो दिस इज 7 इंटू 45, तो 7 इंटू 7 इंटू 45 बाई 10 इंटू 2, तो बचा 2, ऊपर बचा 9, तो 7 इंटू 7 इंटू 9 बाई 2 इंटू 2, तो आर हमारा यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 3/2, यानी 21/2। आर विल इक्वल 21/2, रेडियस विल बी 21/2, तो कर्व सरफेस एरिया और द क्लोथ रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू 21/2 इंटू एल चाहिए हमको, एल की वैल्यू भी चाहिए। अब एच यहाँ पे कितना गिवन है, 14 गिवन है, हाइट इज 14, तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हाइट इज 14 एंड रेडियस इज 21/2, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एल? ठीक है, यहाँ पे रेशियो निकाल लो, साइड्स का रेशियो निकाल लो, 14 21/2 का रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है हमारा 2 से मल्टीप्लाई करते 7 से यहाँ बचा और 2 यहाँ पे बचा 3, तो 4:3 का रेशियो आ रहा है साइड्स का। एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इन द रेशियो, परपेंडिकुलर साइड्स आर इन द रेशियो 3:4, तो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। ठीक है, सो बेस हमारा क्या है, 3 यूनिट्स, यानी 3 इंटू 7/2, तो एल विल बी इक्वल टू 5 इंटू 7/2, 5 इंटू 7/2, अकॉर्डिंगली हमें कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। और फिर देखिए हमें लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है बेसिकली, और लेंथ फाइंड आउट करना है, तो लेंथ ऑफ द कैनवस विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 5 इंटू 7/2 डिवाइडेड बाई 1.1 और 11/10, 11 से बचा यहाँ पे 2, और फिर हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 21 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 105/2 इंटू 10, तो 1050/2
दैट इज 525 मीटर्स। थोड़ा कैलकुलेटेड क्वेश्चन था, कैलकुलेट करना यहाँ पे जरूरी था, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे क्वेश्चन में आइडिया के लिए क्या कर सकते थे कि देखो अगर हमें ये पता है कि इफ आर इज इक्वल टू 7, तो दो वैल्यूज अगर दिमाग में है कि पेरीमीटर और सरकमफरेंस और 2 पाई आर विल बेसिकली बी इक्वल टू 44 एंड एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 154 फॉर रेडियस इक्वल टू 7। ठीक है, अब अगर रेडियस हमारा डबल हो गया, 7 के बजाय 14 हो गया, तो सिंस पेरीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा, दैट विल बी 88, बट एरिया विल बी 4 टाइम्स। ठीक है, पेरीमीटर डबल होगा बट एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट विल बी 660। ओके, सिमिलरली अगर हमारा रेडियस हाफ हो गया, 7/2 हो गया, तो उस केस में हमारा पेरीमीटर विल बी जस्ट हाफ 22 और एरिया विल बी 1/4 विच विल बी 154/4 यानी 77/2 38.5। अब यहाँ पे डायरेक्टली तो कनेक्शन नहीं बैठ रहा है हमारा, बट एरिया ही हमें गिवन है और एरिया 154 की बजाय है 346.5। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो रेडियस है अगर डबल होता तो एरिया होता 616। दिस इज समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, समवेयर इन बिटवीन है। अगर हम देखें तो क्या वैल्यू आ रहा है, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। अगर रेशियो का आइडिया हमें कि 1.5 स्क्वायर दैट इज 2.25, तो समवेयर प्रॉब्ली 1.5 टाइम्स होगा। अब यहाँ पे चाहो तो अल्टीमेटली 346.5 बाई 154 भी कर सकते हो और फिर वैल्यू में आ जाएगा, बट अगेन कैलकुलेशन अगर इस तरह से करना पड़ा तो बात वही हो जाएगा। ठीक है, बट कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा और आइडिया हमें लग गया कि दिस इज 2.25 टाइम्स रफली। ठीक है, ट्वाइस कितना होगा, ट्वाइस होगा हमारा 154 इंटू 2 दैट इज 308 और फिर 1/4 ऑफ दिस दैट इज 38.5, तो यस दिस इज 346.5। तो हाँ हमारा रेडियस जो है 1.5 टाइम्स होगा, यानी रेडियस विल बी 7 इंटू 1.5 विच इज 21/2। ठीक है, अगर ये एस्टिमेशन कर पा रहे हो तब तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे। ठीक है, बट ये एस्टिमेशन भी समझना इंपॉर्टेंट है, कई बार ये चीज़ काम आ सकती है, स्पेशली जब कैलकुलेशन मुश्किल होगा तो अप्रॉक्सीमेट करने में तो डेफिनेटली काम आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the radii of two cones are in the ratio 2:3 and their volumes are in the ratio 1:3, तो what will be ratio of their heights? रेडियाई गिवन है, रेडियाई का रेशियो गिवन है और कोन्स का हमें वॉल्यूम का रेशियो गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देयर आर टू कोन्स V1 और V2 का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। 1/3 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा R1/R2 होल स्क्वायर इंटू H1/H2 और V1/V2 दैट इज इक्वल टू 1/3, दिस पार्ट इज 1/3, R1/R2 है 2/3, तो 2/3 होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2। तो यहाँ से H1/H2 विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 3/2 होल स्क्वायर या फिर 9/4, तो दैट विल बी 3/4। 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 cubic meter of iron weighs 7800 kilograms. The weight of iron in a pipe of length 4 meters whose interior and exterior diameters measure 10 centimeter and 12 centimeter respectively. So what will be our weight of iron? ठीक है, क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो यहाँ पे 7.8 आई गेस टाइपिंग मिस्टेक होगा, 7.800 मेंशन था, तो क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन गलत था। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने मिस्टेक करेक्ट कर लिया सो दैट हमारा आंसर मैच कर जाए। बट एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे कि तुम्हारा वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है, तो फिर वहाँ पे मतलब बार बार कैलकुलेशन करने की कोशिश नहीं करनी। कई बार एग्जाम में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, एक या दो क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हमें जो डेटा गिवन हो वहाँ पे कोई एरर हो, मिस्टेक हो, तो वहाँ पे अपना टाइम कॉशियसली बचाना है और उस क्वेश्चन से आगे मूव कर जाना है। ठीक है, फंसना नहीं है उस क्वेश्चन में, अदरवाइज वो जो तुम टाइम वेस्ट करोगे उसका तुम्हें कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। ठीक है, तो 1 cubic meter ऑफ आयरन दैट इज वेइंग 7800 kilograms। तो डेंसिटी ऑफ आयरन गिवन है हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, डेंसिटी यानी कि वेट बाय वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल 7800 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। अब इसको यूज़ करके हमें वेट निकालना पड़ेगा, तो पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें इंटीरियर डायमीटर गिवन है और एक्सटीरियर डायमीटर गिवन है। और यहाँ पे मेंशन ये नहीं है वेट ऑफ आयरन इन अ पाइप, ओके पाइप है, पाइप है, ठीक है, सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल पाइप होगा। कुछ कुछ ऐसा शेप होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द पाइप विल बी इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। ओके, और बेस एरिया हमारा क्या है, डिपेंड करेगा ऑन इंटरनल रेडियस एंड एक्सटर्नल रेडियस।
ठीक है, दिस विल बी बेस एरिया. तो बेस एरिया विल बी इक्वल टू पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच, पाई 22/7. और हमें क्योंकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है, हाइट भी मीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे. और ये गिवन भी डायमीटर है, तो डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट करोगे. रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर इंटरनल एंड 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल. ठीक है, रेडियस यानी डायमीटर बाई 2. ठीक है, और फिर उसके बाद कन्वर्ट करोगे मीटर में, तो R2 विल बी 6. ठीक है, आउटर रेडियस हमारा होगा 6 और इनर रेडियस होगा 5, बट ये सेंटीमीटर में, मीटर में होगा 6/100. तो 6/100 होल स्क्वायर माइनस 5/100 होल स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाइड बाई 4. ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 100 से डिवाइड नहीं किया तो पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, अब ये हो गया 22/7 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 4. तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 22/7 इंटू 11 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 4. दिस इज वॉल्यूम इन मीटर क्यूब. हमें चाहिए वेट क्या होगा, तो वेट विल बी वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी. कैलकुलेशन अच्छी खासी है इस क्वेश्चन में. 22/7 इंटू 11 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 7800 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो चले जाएंगे. ठीक है, फिर भी कैलकुलेशन हमारा अच्छा खासा रह जाएगा. तो 22 इंटू 11 या 11 इंटू 11 आ गया 121 इंटू 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 78 बाई 700. 121 इंटू 8 इंटू 78 बाई 700. अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं है, मतलब इतना कितना अप्रॉक्सीमेशन हम कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, 8 इंटू 78 कितना हो जाएगा? दिस विल बी 8 इंटू 7 तो 560 प्लस 64, तो 121 इंटू 624 बाई 700. ओके, अप्रॉक्सीमेट ये कर सकते हैं कि 7 से डिवाइड कर दो 624 को, मल्टीपल तो नहीं आ रहा है बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा हमारा. ठीक है, तो एक काम तो ये कर सकते हैं, 7 से डिवाइड किया तो 630 होता, तो फिर हमारा 90 टाइम्स जाता है, तो 89 टाइम्स रफली जाएगा. तो 120 इंटू 89/100 कह सकते हो इसको. दिस वैल्यू कैन बी अप्रॉक्सीमेटली 121 इंटू 89/100. ठीक है, तो रफली क्या है 89 प्लस उसका 21% भाई 1.21 है. रफली क्या है 89 इंटू 1.21. ठीक है, 89 इंटू 1.21, तो 89 प्लस 20% और ऐड कर दो, रफली 18 आएगा. रफली 18 आएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा 107 के आसपास. ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्लाइटली लार्जर आएगा 107 से, तो आंसर हमारा 108 हो जाएगा. अप्रॉक्सीमेट ही करना पड़ेगा क्योंकि इतना कैलकुलेशन एक्जैक्टली थोड़ी करोगे. ठीक है, एक अप्रोच तो ये हो गया. और यहाँ पे क्या कर सकते थे? ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं इसको. ओके, ठीक है. भाई या फिर 89 को हम 90 मान सकते थे, ये भी कर सकते थे कि हाँ इसको 120 मान लेते हैं, इसको 90 मान लेते हैं, 120 90/100. हाँ ये भी कैलकुलेशन, ये ज़्यादा आसान है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से आंसर हमारा 108 आया था. ओके, और वैल्यू करेक्ट ही रहने दो कि दिस इज 120 क्या है, 120 प्लस 1 है और 89 है 90 - 1. रिजल्ट हमारा मतलब अप्रॉक्सीमेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आता. ठीक है, मतलब थोड़ा सा एरर तो आएगा बट ठीक है, मतलब आसपास वैल्यू आ जाएगा 120 इंटू 90 से, क्योंकि 1 का ही डिफरेंस है सच. और फिर पूरा रिजल्ट देखेंगे तो दिस विल बी प्लस 90 माइनस 120 -1, तो इस 120 यानी कि 10800 -30 -1 -31. ठीक है, सो एरर हमारा कितना आएगा? दिस विल 108 -0.31. तो अप्रॉक्सीमेटली हम उस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. A solid brass sphere of radius 21 centimeter is converted into a right circular cylindrical rod of length 28 centimeter. Ratio of total surface of the rod and sphere क्या होगा? तो हमने क्या किया, कन्वर्ट किया स्फेयर को टू अ रॉड, यानी कि वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट इन बोथ केसेस. तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ रॉड विल बी इक्वल. तो रॉड का हमें लेंथ गिवन है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच फॉर द रॉड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर विच विल 4/3 पाई इंटू 21 क्यूब. पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा,
3 से बचा यहाँ पे 7 और हमें h कितना गिवन है 28 गिवन है। आर स्क्वायर इंटू 28 दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 21। तो 28 से 4 इंटू 7 कैंसिल आउट हो गया, आर आ गया इक्वल टू 21। रेडियस ऑफ द रॉड विल बी 21। टोटल सर्फेस एरिया का रेशियो क्या आएगा ऑफ स्फेयर एंड रॉड। ऑर्डर में पहले रॉड लिखा है तो पहले रॉड का लिख लेते हैं। ऑफ रॉड इज टू टोटल सर्फेस ऑफ स्फेयर। फॉर स्फेयर टोटल सर्फेस एरिया इज 4 pi r square and for rod that is 2 pi r into h plus r। तो 2 pi वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे r इंटू एच प्लस आर इज टू 2 r स्क्वायर। और रेडियस क्योंकि दोनों के लिए सेम ही है तो r को भी कैंसिल कर दो तो बच जाएगा h प्लस आर इज टू 2r। सो इन केस ऑफ रॉड h इज इक्वल टू 28, r इज 21, तो 49 इज टू 42, दैट विल बी 7:6। 7:6 ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements, which of them are correct? First one, if the height of cylinder is doubled, area of curved surface is also doubled. So height of cylinder, area of curved surface area for a cylinder is 2 pi r into h. So since that is proportional to h, तो height को double करोगे तो yes, that will also double. This is correct. पहला statement correct है। Second one, radius of a hemispherical solid is doubled, so total surface area becomes 4-fold. Hemispherical solid. So for a hemisphere, कर्व सर्फेस एरिया दिस इज इक्वल टू 2 pi r स्क्वायर, हाफ दैट ऑफ स्फेयर। ठीक है, दिस इज कर्व सर्फेस एरिया। और जब हम टोटल सर्फेस एरिया की बात करेंगे तो बेस एरिया भी ऐड करेंगे, दैट विल 2 pi r स्क्वायर प्लस pi r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 pi r स्क्वायर। बट इवन देन दिस इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर ओनली। ठीक है, तो अगर हम रेडियस को डबल कर रहे हैं तो यस, रेडियस को डबल करेंगे तो रेडियस स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा, तो यस टोटल सर्फेस एरिया 4-fold। ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट सी, हेमिस्फेयर एंड कोन हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स, तो रेशियो क्या होगा? So there is a hemisphere and there is a cone and both have equal bases। तो बेस रेडियस r है और हाइट क्या होगा? हेमिस्फेयर का हाइट भी r होता है, यानी कि फॉर द कोन ऑल्सो हाइट इज ऑल्सो इक्वल टू r। तो कर्व सर्फेस एरिया फॉर हेमिस्फेयर विल बी 2 pi r स्क्वायर एंड फॉर कोन दिस विल बी, क्या आएगा कोन के केस में? दैट डिपेंड्स ऑन lateral height pi r l। l क्या हो जाएगा? इफ दिस इज r, दिस इज r, राइट एंगल ट्रायंगल है, सो l विल बी इक्वल टू r रूट 2। दिस इज 2 pi r स्क्वायर एंड दिस विल बी pi r इंटू रूट 2r। तो r स्क्वायर से r और r कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे पाई भी कैंसिल आउट हो गया, बच गया 2 * रूट 2 विच इज बेसिकली रूट 2:1। ठीक है, ऑर्डर क्या है? हेमिस्फेयर पहले कौन बाद में? हाँ बिल्कुल ठीक है, रूट 2:1, यानी कि सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए भी करेक्ट था, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। A pump can be operated both for filling a tank and for emptying it. The capacity of the tank is 2400 meter cube. The emptying capacity of the pump is 10 meter cube per minute, higher than its filling capacity. So consequently, the pump needs 8 minutes less to empty the tank as to fill it. Filling capacity क्या होगा? Not as such a question of mensuration, but ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। कि pump can be operated both for filling a tank and for emptying. Capacity total 2400 है, and also given that emptying capacity अगर उसको E मान लेते हैं तो E is equal to filling capacity plus 10. Time taken to empty it will be lesser in comparison to time taken to fill it। और वही गिवन है कि the pump needs 8 minutes less to empty the tank। ठीक है, तो फिल करने का टाइम ज्यादा होगा। 2400 by f will be time taken to fill the tank and 2400 divided by e or f plus 10 will be time taken to empty the tank and the difference will be equal to 8। ये क्वेश्चन बन गया हमारा। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए प्रॉपर सॉल्व करोगे तब तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा, बट ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच क्या होगा कि इंस्टेड हम राइट हैंड साइड को इंटीजर ही रहने दें और थोड़ा सा चीज़ों को मतलब वैल्यूज़ को स्मॉलर कर लें।
कैसे करेंगे कि डिवाइड कर दो 8 से, पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि राइट हैंड साइड में 8 आ रहा है, तो उससे हमारा राइट हैंड साइड में 1 आ जाएगा, और तभी वैल्यूज इंटीजर आएंगी, बिकॉज 2400 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू स्मॉलर हो जाएगा, डिवाइड बाई 8। आई कि बाहर काफ़ी लाउड वॉइस आ रहा है, तो वो नहीं आ रहा होगा तुमको। तो 300 बाई एफ माइनस 300 अपॉन एफ प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 1। तो जो एफ है हमारा, अब देखो ऐसे केसेस में जब हमारा राइट हैंड साइड में इंटीजर है 99% केसेस में, यहाँ पे हमारा जो एफ होगा, एफ एंड एफ प्लस 10 बोथ विल बी अ फैक्टर ऑफ 300। तो 300 के फैक्टर्स देखो जिनके बीच में 10 का गैप है, दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू 30 और 5 इंटू 60 और 6 इंटू 50। ठीक है, तो क्या हो सकता है, हाँ अगर हम 10 का गैप है तो इन दोनों में 10 का गैप आ रहा है 60 और 50 में, और अगर हम इनको लें सो दिस विल बी बेसिकली 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। तो 300 बाई 50 माइनस 300 बाई 60, यानी कि एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, इक्वल टू 50 आ गया। एफ इज इक्वल टू 50 आ गया। क्वेश्चन में पूछा है फिलिंग कैपेसिटी पूछा है तो 50 आएगा, अगर एम्पटिंग कैपेसिटी पूछता है तो 60 आता। ठीक है, फिलिंग कैपेसिटी पूछा है यानी कि एफ की वैल्यू पूछा है, तो आंसर हमारा 50 होगा। बाकी यहाँ से चाहते हो तो क्वांटिटी भी बना सकते थे, पर जरूरत नहीं है, क्यों बनाओगे। ठीक है, बना सकते थे, 300 इंटू एफ प्लस 10 हो जाता, माइनस 300 इंटू एफ, एंड दैट इज इक्वल टू एफ इंटू एफ प्लस 10। तो वैल्यू है 3000 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 10 एफ स्क्वायर प्लस 10 माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी 50 इंटू 60 में आ जाता, तो आ जाता अल्टीमेटली एफ माइनस 50 इंटू एफ प्लस 60, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एफ की दो वैल्यूज मिलती, एक तो मिलती है हमें 50 और एक मिलता है माइनस 60। अब ऑब्वियसली फिलिंग कैपेसिटी है तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, निगेटिव नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। और अभी अपनी इक्वेशन में भी खैर हमने एम्पटिंग को भी एफ प्लस नहीं रखा हुआ है, तो भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आता है। क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Floor of a room is 15 meters 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad. So what is the least number of square tiles required to pave the floor? फ्लोर का हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है और हमें चाहिए लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स। तो अगर हमें टाइल्स का नंबर लीस्ट चाहिए तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि जो हमारा टाइल का साइज होगा दैट मस्ट बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, टाइल साइज if that is equal to a cross a should be HCF of these two values 15 meter 70 centimeter यानी कि this is 1517 centimeter and 902 centimeter। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने के लिए क्या करोगे इन वैल्यूज का, या तो इनको फैक्टराइज कर लो या फिर इनका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस विल बी इजियर टू हैंडल। 15 17 और 905 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 615। अब इसको फैक्टराइज कर लो, 5 का मल्टीपल तो है ही है, तो 5 इंटू 123 और 123 हो गया 41 इंटू 3, 5 इंटू 41 इंटू 3। ठीक है, अब 5 के मल्टीपल ये दोनों नहीं है तो 5 तो एचसीएफ का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, 5 को इग्नोर कर दो। 3 के मल्टीपल भी नहीं है 902, तो यानी कि 41 मस्ट बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि 5 का मल्टीपल है नहीं है दोनों नंबर्स, तो 5 तो एचसीएफ का पार्ट हो नहीं सकता, 5 फैक्टर नहीं हो सकता इनका, 3 भी फैक्टर नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली 41 इज द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर द एचसीएफ। तो 41 सेंटीमीटर विल बी द साइज ऑफ द टाइल। ठीक है, 41 क्रॉस 41 का टाइल होगा, तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा n इंटू 41 इंटू 41, दिस विल बी टोटल एरिया दैट इज इक्वल टू 1517 इंटू 902। 41 से जाएगा 20 टाइम्स 820, 22 टाइम्स जाएगा, और फिर 41 से यहाँ पे बचेगा 41 से 3 टाइम्स जाएगा तो आगे 123 बच गया, फिर हमारा 287 तो 37 टाइम्स जाएगा। देखिए एन विल इक्वल 37 इंटू 22, 37 इंटू 20 740 प्लस 74, तो दैट विल बी 814। नंबर ऑफ टाइल्स विल बी 814, ऑप्शन सी। ओके, 814 विल बी द आंसर इन दिस केस। क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट के दो क्वेश्चन एज सच मेंशुरेशन के नहीं थे, बट ठीक है हमने सोचा कि ये भी डिस्कस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को भी, और इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो ही बात सारी समझ में आएंगी, फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और साथ में इफ़ यू एनी अदर क्वेश्चंस ऑफ योर्स ओन तो वो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो एट adit.me/adit.me/adity। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सेशन अगर पसंद है तो उसको लाइक करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।